are going to start linear equation in one variable. First of all, I want to tell you what is variable. Variable means x, y, z. Means value is not fixed. See, x can be 10, x can be 20, x can be 50. It depends question to question. Okay, which is not same is called variable. Okay, which has not fixed value. See, value of 10 is always 10. If I am going to buy 10 oranges, it means 10 oranges means 10 oranges. If I am going to buy x oranges, so x can be anything. Okay, it depends on the situation and question. What is the question asking? So जिसकी भी value fixed नहीं है, वो क्या है हमारा variable. Means value can be vary from situation to situation or question to question. Okay, now this point is clear. One variable means only one variable we are talking about. If there is any x, so we are solving the value for x. If there is y, so it means we will solve for y only. It means 2x plus 3 is equal to 9x. So y is not here, z is not here, only x is here. Okay, means the full equation is full of only one variable, x, 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 y, y, y. That's it. This point is clear? Okay. Now the next point is equation. ये equation क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊँ expression क्या होता है. Expression होता है कोई भी अगर हम लिख रहे हैं किसी भी दो टर्म्स का रिलेशन, तीन टर्म्स का, किसी भी टर्म कुछ भी हम लिख रहे हैं, वो सब चीजें हैं एक्सप्रेशन. ये इक्वेशन कब बनती है? If there will be any sign of equal to. So if equality sign is there, it means this is now an equation. Okay, 2 points are clear. Now I am starting the third point, which means linear. Linear का मतलब ये है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है, जितने भी वेरिएबल हैं, तो हाईएस्ट जो पावर है वो 1 होगी, तो वो लीनियर होगा. इट मीन्स सी, अगर यहाँ पे ये इक्वेशन में देखूँ तो x की पावर क्या है? 1 1. इट मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1. ओके, नाउ द सेकेंड वन. Is this a linear equation? No, because highest power is 2. 2 is higher than 1 ना. So ये क्या है? हमारी linear equation नहीं है. ठीक है, ये क्या है? quadratic equation है. जब highest power 2 हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं quadratic equation. Now 2x cube minus 9x square minus 7x. What is this? This is not an equation. Okay, equal to 9. Now this is an equation. And what is this? Is it linear equation? No. This is cubic equation. Why? Because the highest power is 3. So we can say this is cubic equation. Now, how can we solve linear equation in one variable? How can we find the value of that variable? So we are starting one question. See. 4x minus 9 is equal to 4. This is the question. Now, this 9 will go there and will become plus. Okay? 9 यहाँ से जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. क्योंकि ये क्या है? ये हमारा एक बॉर्डर है. जो हम अगर बॉर्डर के उस तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? अपना बिहेवियर चेंज करते हैं. तो जो नेगेटिव यहाँ होता है वहाँ जाके पॉजिटिव बन जाता है, जो यहाँ पॉजिटिव है वो वहाँ जाके नेगेटिव. क्यों? क्योंकि हम अपना जो प्लेस है वो चेंज कर रहे हैं. सो 4x इक्वल टू के एग्जैक्ट नीचे इक्वल टू आ रहा है, 4 के नीचे 4 आ रहा है, बस यहाँ -4 है, -9 है, वो वहाँ जाके क्या बन रहा है? +9. सो 4x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13/4. दैट्स इट. सी, तो हम लीनियर इक्वेशन जब भी आती है, अगर वो वन वेरिएबल में है तो हम उस वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं. सबसे पहले 4x के साथ -9 था, -9 को उधर भेजा हमने. फिर 4 था x के साथ, अब x को अकेला करना है तो हमने 4 को भी उधर भेज दिया और हमारे पास x की वैल्यू आ गई. एक क्वेश्चन और देखते हैं. इफ ब्रैकेट्स इज देयर x minus 9 equal to 4x. Okay, 9x because we have taken 4x. Okay. Now कैसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स? This 2 will be multiplied with first one and then second one. Okay. 2x is 2x.
Now 2 multiply 9, 18, but minus 9 is there, so minus 18 is equal to 9x. Okay, now this 9x will come here, 2x plus 9x, and 18 is going there, so it will become plus 18. Okay, now 2x plus 9x हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, हमने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर लाइक टर्म्स होती हैं हम दोनों को ऐड कर देते हैं। लाइक टर्म्स कौन सी होती है? वो लाइक टर्म्स होती हैं जिन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। लाइक एप्पल्स, अगर आपने 2 एप्पल्स लिया, 3 एप्पल्स और खाया है, तो वो एप्पल को हम ऐड कर सकते हैं कि मैंने टोटल इतने एप्पल खाए हैं। बट एप्पल और ऑरेंज दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर नॉट लाइक फ्रूट ना, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। बट यहाँ पर दोनों क्या सेम, अगर ये एप्पल है तो ये भी एप्पल है, और अगर ये हम ईयर्स की बात करें, नंबर ऑफ ईयर्स की, तो ये भी नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? 2 एप्पल्स प्लस 9 एप्पल्स, तो मैं क्या लिखूंगी? 11 एप्पल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 18 बाय 11। तो ऐसे हम ब्रैकेट्स वाली लीनियर इक्वेशंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम का। ओके, वर्ड प्रॉब्लम है हमारी, हमें एक रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, इसकी हमें लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसका ब्रेथ। जो चीज़ हमें नहीं गिवन होती है हम उसको x ले लेते हैं। लीनियर इक्वेशन हमें हेल्प ही इस चीज़ में करती है। अगर कोई भी एक चीज़ गायब है उसको निकालना है, उसको वेरिएबल मान लो, x लो, y लो, z लो, और उसकी वैल्यू निकाल दो, तो हमें उस एक सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया। पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यही होता है। एरिया क्या दिया हुआ है? 100। लेंथ नहीं दी हुई तो हम क्या ले लेंगे? x, और b ब्रेथ, सॉरी लेंथ हमें गिवन है 5, b नहीं दिया हुआ, हम क्या ले लेंगे? x। ठीक है, जब भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हो आपको हर चीज़ लिखनी है। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे मैंने एरिया लिखा है, नहीं आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी जैसे आप करते हो। ठीक है, तो ऐसे सबसे फर्स्ट लाइन आप ये भी लिखोगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x। ठीक है, तभी आप सॉल्व करोगे। 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू x। नाउ दिस इज इक्वल टू 20 एंड 20 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू x। तो हमारी ब्रेथ क्या आ गई? लास्ट में आप लिख दोगे ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर्स। ऐसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू से बहुत हेल्प मिल जाती है। जैसे मैं बोलूँ मेरी एज आपकी एज के ट्वाइस है, या हम कहते हैं राम की एज शाम की एज के थ्राइस प्लस 9 है, तो आप दोनों की एज निकालो एंड सम ऑफ बोथ द एजेस आर गिवन। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और आप उनके रिलेशन निकाल कर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। हमारी NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करो। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके